स्क्रीन विजिबल काफी ज्यादा हो गया है। जूम आउट। Hmm. Chap. You need to exercise number 4. So तो आपने लास्ट वीक ये कर लिया था, राइट? जी। डिस्क्रिप्शन आपने शरीफ की कर ली हुई थी। That's good. Okay, so now let's start with tamreen Rabi. Okay, Sania. First you will tell 1 to 3. Okay. يسكن Yes. شريف في عمارة قديمة. ला अरे स्टोरी याद नहीं है बट ओके, ला। चलें इसको करने से पहले एक बार रीड कर लें, ठीक है? तो सबको रिमेम्बर हो जाएगा। फटाफट रीड करते हैं इसे अच्छे से। सानिया। اوكي انا اسمي شريف سرور. اوكي انا اسمي شريف سرور واسكن في شقة في الطابق الرابع من الإمارة حديثة. I am اسمي sorry, my name is Sharif Sarur surname. Yes. My name is Sharif Sarur or I live in apartment in a first floor in a First. beautiful, yeah, sorry, First. Rabia. I'm so sorry, fourth floor. من الإمارة حديثة. modern in modern, sorry, I live in the apartment in a fourth floor of beautiful modern building. Yeah. إن ثقتي بسيطة ولكن مريحة. Indeed my apartment बसीत का क्या था? Basic is simple. Basic, yeah. Basita. Indeed, my apartment is simple, but it is very comfortable. It is comfortable. أما الصعرة فهو هادي وليس هناك سيارات كثيرة. And as for the street, it is quiet and there is not that much cars. Not so many Hmm. cars. Hmm. Should I go further? Yes, it's full para. تتكون شقتي من غرفة نوم and my مطبخ صغيرة وغرفة معيشة وحمام وتوجد أيضا سرفة تطل على حديقة. My apartment it consists of the غرفة bedroom مطبخ صغيرة, a small kitchen and living room and hammam and bathroom وتوجد and maid, and there is also شرفة balcony تطل على حديقة looking for uh क्या बोलते हैं looking for a Garden. garden. Hmm. الشقة مفروشة بستاير فاخرة. الشقة مفروشة بستاير فاخرة وسجاد تقليدي, and apartment is furnished with luxurious curtains and traditional carpets. Mm-hmm. لا يوجد مسقط في العمارة ولذلك فهي مناسبة للنشيطين. Okay, there is no elevator in the building, and that's why it is مناسب affordable. sorry, مناسب क्या बोलते हैं इसको? Munasaba appropriate. Appropriate for being active only. For the active ones only. Okay. सानिया थोड़ा सा आप शीन पर अगर आप मेहनत कर लें तो किस your rating will be very good. किस पे? शीन. या अरे शीन. मेरी तबीयत सही नहीं है ना.
बिल्कुल, मैं कभी-कभी गलत निकाल देती हूँ प्रोनंसिएशन। Yes, that will be पढ़ी completely हुई है ना पढ़ी हुई no good. Hmm. I think you should also focus on that. Hmm? Mm. My friend was started to teach me, but she has a hectic schedule, so that's why. Okay. Yeah, this is the only thing that that is holding you back. Okay. Exercise 4, तमरीन 4. Okay. Okay, तो आपने ये read कर दिया. It's okay. Ansari Salma. Now you will look. You will answer. Yeah. يسكن شريف في عمارة قديمة. لا شريف يسكن في عمارة حديثة. صحيح. الشقة في الطابق الثالث. الشقة في الطابق الرابع. هذا قطع. الحي هذه. آه، ये नहीं समझ आया. الحي حي यानी आपका एरिया होता है. अरे हाँ हाँ हाँ. आप रह रहे हो. अच्छा. So the area is calm and quiet. Is it so? जी जी. So answer would be क्लियर. هذه यानी calm and quiet से मतलब होता है. बिल्कुल. ला توجد. हम्म, एरिया तो उतना काम नहीं था तो उसको calm. हाँ. Answer would be yes. क्योंकि वहाँ पे है कोई. أما الشارع فهو هادي. فهو هادي. اوكي. لأن كان ليست هناك سيارات كثيرة. تمام. الآن توجد حديقة بجانب العمارة. نعم وجدوا حديقة بجانب العمارة. لا توجد حديقة في الشقة. نعم لا توجد سفرة في الشقة. الشقة واسعة وطويلة. أمم، أش... نعم الشقة واسعة وكبيرة. جيد. لا لا أمم, वो एक्चुअली छोटा था लेकिन आरास्ता था सब चीज सारी सहूलियात से. तो सारी सहूलियात से आरास्ता को क्या बोलेंगे. هو مفروسة. مفروض. اوكي वो मफरूसा. أمم, But it is not mentioned that it was short. मेंशन नहीं है यहाँ पर कि कहीं ये छोटा है और तंग है. बड़ा या छोटा की बात नहीं हुई थी. आई थिंक क्वाइट है एरिया एंड दैट सिंपल है. It was simple and कंफर्टेबल है और comfortable. Yes. Even it has شرفة وحمام ومطبخ وغرفة النوم.
सही। 5 ओके। वाला तो सही होगा ना, क्योंकि ला तऊजद सुरफा फिर शक्का, बट हमने तो पढ़ा है कि वहां पे शुरफा था, तो 5 वाला शुरफा खाता नहीं है, वो होगा। सुफरा है। शुरफा नहीं, वो सुफरा है। वो एलिवेटर नहीं एलिवेटर नहीं, सुफ्रा उसको बोलते हैं, डाइनिंग टेबल। हम्म। सफरा किसको? डाइनिंग टेबल, दस्तरखान, सुफरा। अच्छा अच्छा। तो 6 का भी आंसर आपका राइट होगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन। ओके। ओके सानिया, योर आंसर फ्रॉम 7, 8, 9, 10। हाँ, ततकवन الريكة सबा सबाइन, सबा लेफ्ट। लेफ्ट हो गई। यस। اوكي، تتكون الشقة في غرفة مطبخ وحمام، غرفتين. لا لا، نعم نعم. नो। तबाह। إنها مفروشة بالستاير. نعم. السجادة التقليد. نعم. الشقة مناسبة للكبار في السن. لا لا لا. तबाह। है। यहाँ पे आपकी एक्सप्लेनेशन है अम्मा और लिजालिक का। तो अम्मा जो है आपके, इट इज़ अ कनेक्टर, ओके, जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, ठीक है? और मेनली ये किससे कंटिन्यू होता है? फ से। फ जो है इसका कंटिन्यूअल है। मतलब क्या होता है कि जब एक ही टॉपिक आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब उस टॉपिक जिसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका दूसरा एस्पेक्ट जब एक्सप्लेन करने जाएँगे, तो ये फ से कंटिन्यू होगा। जैसे अम्मा शारे फहुवल हादी। एज़ फॉर द स्ट्रीट, देन स्ट्रीट के बारे में अब फर्दर एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि इट इज़ क्वाइट, ओके? सो फहुवा हादिया। Okay, जब when you are using the amma, it means then you are referring about something, and उसी हुँ, को कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ हुँ, अदर चीज बता के, तो आप फॉर ऐड कर रहे हैं उधर। यस। मतलब कि फहुवा के बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा, वो अम्मा के बाद वाली जो टॉपिक होगी, उसको एक्सप्लेन करेगा फर्दर, ठीक है? जैसे शारे है, तो फहुवा के बाद जो आएगा वो हादी है, वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? शारे को। जी जी। अच्छा, ये अम्मा बाद का क्या मीनिंग होता है? क्योंकि बहुत मतलब सीरियस रहते हैं ना, वो लोग लेटर लिखते हैं अम्मा बाद, या बोलते भी है तो अम्मा बाद। व्हाट डज इट मीन? हुँ। What the one who comes after it, अम्माबाद। द ये सेंटेंस। आपको खुतबा में मिलेगा आपको कि अम्माबाद, लास्ट में बोलते हैं अम्माबाद, ठीक है? मतलब सलाम और दुरूद जब भेजा जाता है ना? वला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्माबाद, ओके? तो अम्माबाद से ही वहाँ पे मतलब कि वो होता है कि उसके बाद जो आए, मतलब ताबईन और तबा ताबईन एंड whoever comes after that। हाँ, बट है ना, मैं जब देख रही थी सीरीज में, तो वो लोग कोई बात करते हैं, हुँ, उसके बाद से एक सेंटेंस यूज करते हैं अम्मा बाद। इट सीम्स लाइक दैट कि इसके बाद, या फिर लाइक दैट, ऐसा सीन मतलब मुझे समझ में आता था, बट एग्जैक्टली मीनिंग नहीं समझ में आई मुझे। अम्मा तो मतलब उसके बाद में, हाँ, उसके बाद, वही तो कहा मैंने, उसके बाद जो आए। जी जी, गॉड। देन लिज़ालिक भी क्या होता है? फॉर दैट रीज़न। अब यहाँ पे ना कोई सेंटेंसेस होते हैं जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने कॉज़ बताया, ठीक है, किसी चीज़ का, अब उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, वो कंटिन्यू करके एक और सेंटेंस बनाएँ। मतलब पूरा एक ही सेंटेंस है, पर वो 2 पार्ट में कर मतलब कि डिवाइडेड है। किसी वजह से लिज़ालिक और फॉर की वजह से। ये भी फॉर से कंटिन्यू होगा, मतलब फॉर दैट रीज़न, ओके? मतलब कि कोई आपने रीज़न बताया था, ठीक है? अब यहाँ पे कहा कि लिज़ालिक फ़हिय मुनासिबा लिन न लिन्नशीक
طين فقط. Okay, तो for that reason it's suitable for active people only. ओके, तो यहाँ पे कॉज था यहाँ पे कि मतलब वहाँ पे कोई एलिवेटर नहीं है ना, रीजन आपने बताया। फॉर दैट रीजन, अब उस रीजन के लिए ये हम उसी के लिए मतलब अप्रोप्रिएट है, उसी लिए सुटेबल है जो एक्टिव है। ओके, तो ये इफेक्ट बता रहा है कि मतलब एलिवेटर ना होने की वजह से इसका ये इफेक्ट है, मतलब इसका ये कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, अम्मा जी यहाँ पे देखें, amma as for is used when you are moving on to a different aspect of the same topic, same as I explained. Okay, lizalic for that reason is used to connect cause and effect. Both are usually followed by fa and so. Clear? हम्म हाँ 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 Hmm. एक कॉज बताइए फिर उसका इफेक्ट क्या होगा उसको उससे लिजालिक से start करें है, ये देखें, इसी पे एक एक्सरसाइज है तमरीन 5। ओके, सो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, अशक्कतु फी तौबिक अर्राबि, अम्मा शक्का फहिय फी तौबिक अर्राबि। तो यहाँ पे एक सेंटेंस था, तो उसको एक तरीके से अम्मा और फहुआ से वो डिवाइड करके एक तरीके से वो बना दिया कि एक शक्का है और उसको एक शक्का को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो हम्म, अम्मा शक्का फहिय फी तौबिक अर्राबि। तो बिल्कुल ऐसे ही हम अब करना है। ओके, सलमा, जी सज्जाद तकलीदी। अम्मा श- अभी आप क्या समझ थे? अम्मा शका فهو ताबिक़ الرابع, राइट? हाँ, फहिया मतलब कि जिसके बारे में बात करें ये फहुआ फहिया, ये भी हाँ, मेंशन करें। ताबिक़ الرابع. أما السجادة فهو أما السجاد فهو تقليدي. أما ठीक, الع- أما العمارة فهي حديثة. तमाम जयद। सानिया, जी أما شفرة هو تطل على حديقة सलमा म्यूट। أما شرفة فهو تطل على حديقة أما مطبخ फहिया। فهي سوري ها فهي تطل على حديقة أما مطبخ فهو صغير ये तो आपकी लिसनिंग एक्टिविटी है। ओके, सो वी आर लिविंग इट। यहाँ पे देखें आपको हो एक टास्क आ गया कन्वर्सेशन का। Al-Muhadisa, describe your new apartment in the prompt audio conversation. Prepare the Arabic to describe these features. Okay, so आपको एक ऑडियो तैयार करनी है। ओके, इन अरबिक में ये फीचर्स को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो ये अरबिक में। होमवर्क हो गया हम्म होमवर्क जी, सी होमवर्क ऑडियो। ओके ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे जो मास्टरिंग अरबिक ग्रामर में आपने पढ़ा था मेनली प्लूरल से रिलेटेड रूल्स कि कैसे आप सिंगुलर मैस्कुलाइन प्लूरल बनाते हैं और सिंगुलर फेमिनाइन प्लूरल बनाते हैं, वही चीज़ है। ओके, सो यू विल रीड सानिया। ओके रीड करना चाहिए जस्ट वी अपनी विल गो, लैंग्वेज में बोल दो क्या बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ओके, हाँ वही बिल्कुल सेम है अपनी लैंग्वेज में बोल दो क्या कैसे बनता है जस्ट रीड रीड कर लें, समझ में आया क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओके ओके एनी क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क। The plural الجماع. There are three different methods of making plural in Arabic, and these methods in turn have variations. This summary will help you to consolidate your knowledge of how Arabic plurals are made. You need to try and remember a word together with its plural.
Gradually, you will find that you get a more instinctive grasp of the patterns and are able to feel which plural might be right for a particular word. Sound. There are some types of plural like sound external, masculine plural, इसको SMP भी बोलते हैं. It is used almost exclusively with words referring to groups of people of whom at least one is male. Commonly used for nationalities, jobs, attributes derived from forms of the verbs beginning with mu. Okay. Hmm. Moon is the difficult ending in Standard Arabic. In is used in particular structure. See additional note on page number 55. There are examples also. Murasil, उसका plural है मुरासिलून या मुरासिलीन. मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन. लुबनानी, लुबनानियून, लुबनानीन. Sound feminine plural. SFP. Uh, Okay, it is so not stop. have. इसमें कोई doubt है? Anything? All clear? या इट इज ऑलरेडी क्लियर कि हमने अपने ग्रामर में ऑलरेडी सीखा है कि किसी चीज को यानी किसी मेल है वर्ड उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ऊना और ईना ऐड करते हैं. बिल्कुल सही. और कोई भी ऐसे ग्रुप को रेफर करने जिसमें कम से कम एक मेल हो, जी उस ग्रुप को, राइट? कम से कम एक मेल होना चाहिए, भले ही सारे फीमेल. जी दैट विल बी तो मेल ही कंसिडर्ड एज अ कहलाता है. और इसका यस. ईना का कंडीशन था कि दैट आप प्रपोजिशन लगाते हो तो ईना हो जाता है और इदाफा में ईना हो जाता है, लास्ट में आता है तो आपका. हम्म. The सही है. sound feminine जब is वो very नसब और easy जर के to. स्टेट में हो, ऐसे आप याद रखें, जब वो नसब जी हो या जर के स्टेट में हो, राइट? कौन से मौजे. एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस में हाँ ईना का इस्तेमाल होता है, और नॉमिनेटिव केस में ऊना का इस्तेमाल होता है जब वो सब्जेक्ट हो सेंटेंस में. या जब वो ऑब्जेक्ट बन जाए तो ईना, ईना, ऐसे. ओके. सलमा, आपको भी क्लियर है सारा? जी मैम, यस मैम. ओके. सलमा, आप रीड करें अब. ओके. To sound feminine plural. आते. Probably the most common Arabic plural used for the words referring to group of people, all of whom are female. जब सारे फीमेल है तब आते यूज करते हैं, आती. जैसे कि मर्रज़ाती, मुमर्रज़ातुन से मुमर्रज़ाती, मिस्रियतुन से मिस्रियाती. और यूज्ड फॉर सम अदर मैस्कुलाइन, और कुछ ऐसे मैस्कुलाइन के लिए यूज होता है, और फेमिनाइन के लिए नॉन ह्यूमन वर्ड्स जो कि नॉन ह्यूमन हो. सारे फेमिनाइन रहेंगे तब यूज होगा, और या फिर समझो प्लूरल है और नॉन ह्यूमन है तब यूज होगा. जैसे कि स्पेशली लॉन्गर वर्ड्स derived from forms of verb and improved words of foreign इम्पोर्टेड कहाँ गया. ओके, हाँ. इम्पोर्टेड वर्ड्स ऑफ imported फॉरेन. words of foreign organs, फॉरेन ओरिजिन, जो फॉरेन ओरिजिन के जो वर्ड्स है अलग से उसमें यूज होंगे. जैसे कि हम्माम है तो हम्मामात, इज्तिमा है तो इज्तिमात, टेलीविजन है तो टेलीविजनात. जो फॉरेन लैंग्वेज के जो वर्ड्स है उसके लिए भी, और जो नॉन ह्यूमन प्लूरल है उसके लिए जो है तो आती यूज होगा, यानी फेमिनिन प्लूरल यूज होगा.
चाहिए। और वो मैस्कुलाइन के लिए ऊना ईना रहेगा तो एक में एक ईना रहेगा और ईना रहेगा ना, वो क्या बोलते सो नसब रहने के बाद तो मतलब अगर रफा है तो ऊना और नसब है तो आईना और ईना, ये दोनों में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज ये हो रहा था कि ईना और आईना दोनों यूज होते हैं तो कौन सा कब यूज होता है? ईना ही होता है, मुस्लिम और मुस्लिम। अच्छा, और आईना? हम्म जैसे ईना इज सौदा। डुअल, जी डुअल के लिए। हाँ, जैसे सौदकतैनी, सौदकतीना। हम्म वो आपका ना जब जैसे दो कि लोग की बात होती है तब होता है दो आना लोग के आईना। लिए होता है। यस, हाँ, वो है, ओके। रफा है, नस्ब है और जर है। ठीक है, ये टेबल ऐसे बनाएंगे आप। फिर इसके बाद इसके नीचे 1 2 3, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। ओके, मतलब प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, डुअल के लिए, प्लूरल के लिए। अब यहाँ हाँ, पे मुस्लिम समझ जी, में जी, आ जी। गया। जी, हाँ हम्म जी। तो ये सेकंड वाले में आएगा मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। Then हुँ। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। जी, 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 जी। जी, याद आ गया। Then comes broken internal plural, made by identifying the roots of the word and changing internal vowel sound, similar to English goose or geese or mouse, mice. About 12 common different patterns plus a few other less common patterns defined using root letters. فعل, example أقلام, tense أفعال. ओके, तो मेनली जो होता है कि जैसे इंग्लिश में आपके रूट लेटर्स कुछ, मतलब कि मेन जो ओरिजिनल आपका लेटर है, जो आपका वर्ड्स थे, वो इंटैक्ट नहीं रह जाते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे गूज था तो गूजेस नहीं होगा, उसमें एस सफिक्स लगाकर वो गूजेस नहीं बनेगा, बल्कि ये जो मेन ओरिजिनल जो वर्ड था उसको ही अल्टरनेट उसको चेंज करके एक बना दिया गया नया वर्ड, जैसे गीज। ओके, तो वो ओरिजिनलिटी उसमें इंटैक्ट नहीं रह जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द ब्रोकन प्लूरल। तो इसमें मेनली 12 कॉमन पैटर्न्स होते हैं प्लूरल बनाने के, और भी और जो है जो कि कॉमन नहीं होते। जैसे पैटर्न डिफाइन जैसे है कि वो जितने भी होंगे पैटर्न जो बनेंगे वो फ़आला के वज़न पर बनेंगे। जैसे कि अक़लाम है तो अक़लाम का जो वज़न होगा वो का अफ़आल के पैटर्न पे बना हुआ है। ओके, then comes broken plural is used with many words referring to non-humans. Okay, so broken plural बहुत ही यूज किया जाता है, जैसे कि नॉन ह्यूमंस वर्ड के लिए, जैसे कि फुरनून है। ओके, गैर आकिल चीज़ों के लिए गुरफा है, बैत है, किताब है, दार है, मकतब है। ओके, सो ये इन सब के जितने प्लूरल होंगे वो ब्रोकन प्लूरल्स में आएंगे, जैसे कि अफ़आल पैटर्न पे, फ़ुआला पैटर्न पे, फ़ुऊल पे, फ़ुऊलुन, फ़िआलुन, मफ़ाइलुन पे, जैसे अफ़रान, ग़ुरफ़, बुयूत, कुतुब, दियार, मकातिब। Then comes broken plural can also be used with words referring to groups of male in reference to the singular masculine plural. Okay, so it can be also used like मतलब कि मेल्स जो जेंडर होते हैं उसके ग्रुप को मतलब कि पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे रजलुन है तो रिजाल, उस उनके मतलब रजल मैन का प्लूरल क्या होगा, रिजाल। वजीर है तो वजीर का वज़रा, एंड हफीद का अहफाद। तो ये मेनली मैस्कुलिन को ये नोटिस करता है। ओके, एड्रेस करेगा। देन कम कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन्स जो कि किसी चीज़ का एक कलेक्शन बताएगा। तो कलेक्शन जो होगा, मेनली कलेक्शन जो होगा वो मैस्कुलाइन में होगा। ठीक है, अब उस कलेक्शन का जो एक यूनिट है, वो जब एक यूनिट की आप बात करेंगे
तो वो क्या होगा कि उसमें ता मरबूता लगा होगा, वो फेमिनाइन होगा। जैसे कि बकरा है, मतलब बहुत सारे काउज़ हैं, ठीक है? तो इट इज़ नॉट मतलब कि यहाँ पे कोई मैस फेमिनाइन कोई आसार नहीं है, ठीक है? शजरा है, दैट्स ओके। देन एक चीज़ जब उसका एक शजरा, बहुत सारे शजरा में से एक शजरा को निकालेंगे, तो वो एक फेमिनाइन की तरह वो बनाया जाएगा कि एक शजरा वन ट्री, देन इट विल बिकम फेमिनाइन, ओके? Yeah. क्लियर Mhm. है? Mm. अदर आइटम्स दैट कम्स इन द ग्रुप कैन बी कलेक्टिव, लाइक सज्जाद है, सज्जाद का सज्जादा, ओके? ये आइटम्स में आएँगे, कारपेट एंड कारपेट्स। यहाँ पे Here we आपका have referred one dictionary. यस, Name यस। is यहाँ पे Vera. डिक्शनरी का ये रेफ़र किया गया है, हांस वेयर की डिक्शनरी है, जिसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके साथ-साथ प्लूरल्स भी दिया होता है। तो ये काफ़ी फ़ेमस डिक्शनरी है, ये रेफ़र करने के लिए। But I have downloaded it, so I didn't get it that much. It went over my mind. उसमें कई सा बहुत वर्ड्स हैं। हमारे पास भी थी। इसमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ढूँढते-ढूँढते चीज़ें मिलेंगी। बट उसके साथ ये मतलब स्पेशलिटी है कि जो वर्ड्स आप देखेंगी, उसके साथ-साथ उसके डुअल भी दिया होगा। जैसे कि अब कोई पैटर्न तो फ़ॉलो नहीं करता, उसे हमें डुअल ढूँढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर वर्ड्स का हम डुअल बना लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी कोई कोई पैटर्न को फ़ॉलो करता है, कोई पैटर्न को फ़ॉलो करता है, कोई अननोन वर्ड का हम प्लूरल जल्दी बना नहीं सकते। तो इट इज़ बेटर कि अगर कोई वर्ड मेंशन हुआ है, तो उसके साथ उसका प्लूरल दे दिया जाए, No. ताकि ज़हन में रहे। देन कम्स एक्सरसाइज़ 7, ओके? ये लास्ट करेंगे हम आज के लिए। तमरीन 7, यू विल नीड अ डिक्शनरी टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए डिक्शनरी चाहिए। Find the plurals of this word you have met in this unit as in the example. You could also try and guess the plural before looking it up. तो फिर तो ये आपको डिक्शनरी से देख के करना पड़ेगा, ये क्लास में नहीं कर सकते आप। That will be also your homework. Can I do now? You will search. Why do I need to search? I remember everything. Whatever they have given. Okay, so you remember, then you can do it. Okay. तलाजत तलाजात मतबक मुताबिक हाउद हाउद का क्या था अहवाद शुरफा शुरफात कंप्यूटर कंप्यूटर में क्या लगाना था आज ही लगाना था ना कंप्यूटर क्या बोलते कंप्यूरा कंप्यूटर कंप्यूटरात से क्या है? कंप्यूटरात ओके हाँ। खजाना अम, खजाना का था खजानात और हम्म इसके अंदर है ताबिक तवाबिक अरे शरीर असुर हम्म शरीर असरा। माने सही भी है, बता दूंगा माने बताने की जरूरत नहीं, आता ही है। हाँ हाँ ये चलो अब दूसरा होमवर्क दे दे भले यार Okay, let's see. Exercise number 8, 9. ये तो वो है, listening activities है, हटो यार। Complete this description of some Maya using the words in the box. Okay, ये आप कर लीजिएगा। Exercise number 9. गेस करके गेस करके नहीं करना है, ये आपको बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, बस choose and pick and put it in है your गॉट ID. It's okay? Mm, Okay, that's fine. that's fine. Yeah. Enough to do. एक्चुअली मुझे एक चीज पूछनी थी जो नहीं आया उनके लिए क्या मिलेगा उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए कि नहीं हम्म तो पहली बात तुम अब जो ये है ना एक्सरसाइज जो थी महादेशा वाली,
कहाँ थी? ऊपर ऊपर थी, हमने दी थी। उसको करके देना होगा, ठीक है? और ये तो है आपका भी। ओके। मैंने लिख लिया है, एक ऑडियो बनानी है और आपने जो भी कौन सी एक्सरसाइज दी थी वो करनी है, 9 वाली ना। यस, 9 वाली ये करना होगा। ओके, उनको क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं हम? जी आप सोच के उनको दे दीजिए। नहीं ये जी होना अस्सलाम वालेकुम। चाहिए, इसको एक्चुअली एक्स्ट्रा हम्म, सब आएंगे ऐसे करके। ओके, इनका मैं देखती हूँ। नींद की गफलत में अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो इसको ये भी ऑडियो लेना है इनके लिए। एक्सरसाइज नंबर 10 इनको ये एक्स्ट्रा रहेगी। ये भी ऑडियो है, ऑडियो होमवर्क। हाँ तो अपना ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं ग्रुप में बता दूंगी। मैम ऑडियो होमवर्क कौन सा बोले? ये हमारे लिए एक्सरसाइज नहीं है, है ना, आपके लिए नहीं है। आप भी करना सब होगा तो कर हमारे लिए लीजिएगा, नहीं है। जरूरी नहीं है आपके लिए। नहीं नहीं, आप नेक्स्ट क्लास से कर लीजिएगा। कौन सा बोल रहा है आप वैसे? एडजेक्टिव एंड एक्सरसाइज 10. Now describe your home using the vocabulary and models you have met so far. Remember to vary the phrases you use and try to include some of the connecting words you have met. ओके, तो कनेक्टिंग वर्ड्स को भी इंक्लूड करना है। ओके, फ्रेजेस भी आपको थोड़ा वैरी करके यूज करना है, और जो भी वोकेबलरी आपको पढ़ी है उसको यूज करके एक मॉडल बनाना है अपने घर का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, But ये don't worry, Salma, this is not our homework. This is of them. Okay, जी okay. जी, आप तो आपको बता नेक्स्ट दीजिए क्लास कोई में तो करना ही है ना। आप नहीं करेंगी क्या? क्या? आप नहीं करेंगी क्या नेक्स्ट क्लास में? हाँ तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना, अभी के लिए ठीक थोड़ी ना टेंशन लेना है, ठीक है, मत लीजिए टेंशन। है। ऐसे करें आप। ओके, कंक्लूड करते हैं आज की क्लास। Okay. अस्सलाम वालेकुम।